હા બેટા, લાસ્ટ આપણે RS nomenclature બે કાર્બન માટે એ બધું આગળ જોઈ ગયા. Okay, now, hi beta. In last lecture we have seen RS nomenclature. Now we'll move ahead. How many total stereoisomers are possible? How many optical isomers are possible? How many meso compounds are possible? If number of chiral carbon and chiral center is more, in such questions, how we have to see. For example, if ends are different, like same thing we have seen for cis and trans, geometrical isomerism, if multiple double bonds are there in conjugation, then ends are different, ends are same. If ends are same or different, then number of double bond is odd or even. As per that, we can find out total number of GI. Same thing is that we can find out total number of stereoisomer. If different ends are there, then optically active isomer will be 2 raised to n, where n is number of chiral center. And if ends are different, will not get meso. Meso will be 0. It means total stereoisomer two raised to n, and all are optically active. We know meso is optically inactive. Obviously, if ends are not same, like this, if ends are different, COOH and CH3, then there will not be a plane of symmetry which will counterbalance to half portion. It means this will not be a meso. So if ends are different, it doesn't matter. Very simple, 2 raised to n. Just we have to find out how many chiral centers are there. सेम एंड्स, अगर एंड्स सेम होते हैं, देन टू पॉसिबिलिटी. फर्स्ट, इवन chiral center and odd chiral center. अगर इवन chiral center है तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विल बी 2 raised to n minus 1 and meso will be 2 raised to n by 2 minus 1, and total sum of these two, 2 raised to n minus 1 is optically active and 2 raised to n by 2 minus 1 is meso. Total stereoisomer is the sum of these two. Same end but odd chiral center, then optically active isomer will be 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2. Here 2 raised to n minus 1 by 2 will be meso compound. It means total compound will be same, 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2. These are total compound. Why these two are same? Obviously these are total, but 2 raised to n minus 1 में से इतने निकाल दिए तो sorry, 2 raised to n minus 1 is total.
अब 2n-1 में से इतने निकाल दिए तो बाकी जो बचे वो ऑप्टिकली एक्टिव, तो इतने जो निकाले वो कौन से थे? मेसो। इट मीन्स टोटल 2n-1। अब 2n-1 टोटल है, उसमें से इतने निकाल दो, बाकी जो बचे वो ऑप्टिकली एक्टिव, तो जो निकाल दिए वो कौन थे? मेसो। सो दिस फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर केयरफुली। ये याद करना ही चाहिए क्योंकि इसके बगैर आंसर पॉसिबल नहीं होगा। Now we'll see one or two example. Now first of all, we have to find out how many chiral centers are there. This is chiral carbon. This is chiral carbon. ये हो ही नहीं सकता, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हो तो 4 वैलेंसी डिफरेंट होगी नहीं। सो दिस टू आर chiral center and ends are not same. Now how we can see ends are same or not? Just अगर 2 ही chiral कार्बन है तो उनके बीच में से देख लो, दोनों साइड सेम अरेंजमेंट है? नहीं है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। अगर ये CH3 ही होता तो एंड्स आर सेम होगा कि नहीं होगा? तब भी नहीं होगा। ये अच्छी तरह से दिमाग में रखो। एंड्स आर सेम मीन्स देयर विल बी मेसो। सेम एंड होगा तो मेसो कंपाउंड तो होगा ही। अगर ऑड या इवन कोई भी chiral सेंटर हो तो एग्जैक्ट बीच में से काटो। अगर यहाँ पे CH3 भी होता समझ लो, तो आप बोलोगे दोनों एंड तो सेम है, हमें सिर्फ एंड नहीं देखना है। यहाँ बीच में से काटो तो क्या दोनों तरफ सेम अरेंजमेंट है? नहीं। क्यों? यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। सो दिस इज कॉल्ड एंड्स आर डिफरेंट। हमें सिर्फ एंड पर कौन है ये नहीं देखना है। अच्छी तरह से ये सोच लो कि सेम एंड मीन्स मेसो विल बी देयर। एंड क्या इसमें मेसो पॉसिबल है? नहीं, ये तो मिरर इमेज नहीं है, तो एंड्स आर नॉट सेम। तो ये याद रखना, दोनों साइड CH3 हो तो एंड्स सेम है, ऐसे करके इसमें मत चले जाना। एंड्स आर डिफरेंट and different end very simple, 2n. N is chiral center. There are 2 chiral centers. 2n, 2 it will be 4. So total stereoisomers are 4. All 4 isomers are optically active. There is no meso because plane of symmetry is not possible. There is no plane of symmetry. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, this is chiral carbon. All 4 valencies are different. 1 hydrogen, 1 chlorine, 1 methyl, and this side very long group. So all the 4 valencies are different. Same here. This is also chiral carbon. Now mention what I mentioned here. Chiral center. Chiral carbon mention नहीं किया हुआ है, chiral center mention किया हुआ है. And what is the meaning of chiral center? Chiral center means double bond plus chiral carbon, the total. Now double bond कैसे chiral center हुआ? तो double bond भी chiral center में गिना जाएगा. अच्छी तरह से देख लो how many total stereoisomers. If you have to find out, then we have to find out N, which is chiral center. Here 2n, N is chiral center. First of all, ends are not same. यहाँ से 2 chiral carbon है, बीच में से काटो, दोनों साइड ends are not same. So 2n just meso will not be there. How many chiral carbons are there? Chiral carbons 2. Double bond 1. Total chiral center 3. It means total stereoisomer 2n. 2 3 8. Total stereoisomers will be 8. अब ये डबल बॉन्ड क्यों काउंट किया?
तो अच्छी तरह से समझ लो, ये दोनों किराल कार्बन है। इस किराल कार्बन की वजह से, दो ही किराल कार्बन है सपोज, तो इस किराल कार्बन की वजह से हमें टोटल कितने स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे? अगर दो किराल कार्बन होते तो यहाँ पे 2n लिख दो, n इज इक्वल टू 2 लिखो, 2 मीन्स 4। Because of these two chiral carbon, we get 4 stereoisomers. That is final. Okay. Now, because there is double bond, and if there is double bond around it, cis and trans is possible. Here it is possible. If cis and trans is possible, then 4 stereoisomers because of these two chiral carbon, that all 4 will be cis and all 4 will be trans. So 4 cis, 4 trans, 8 हो गया ना? दैट इज योर फाइनल आंसर। इसीलिए ये डबल बॉन्ड को किराल सेंटर में काउंट करके ही डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट जहां पर भी डबल बॉन्ड हो उसे किराल सेंटर में गिनना नहीं होगा। अगर उस डबल बॉन्ड के आसपास सिस ट्रांस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है तो उसे काउंट करेंगे, यहाँ पे नहीं है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ना, double bond carbon contain 2 hydrogen, 2 same groups, so geometrical isomer is not possible around that pi bond. So now we will not consider this double bond as chiral center. It is not chiral center, it is symmetrical. 2 hydrogens are same. So here we will not count double bond, only 2 chiral carbon, 2^2 means 4. So ये भी हमें देखना होगा कि ये डबल बॉन्ड अगर है तो उसके आसपास GI पॉसिबल है तो उसे काउंट करना है, किराल सेंटर में नहीं है तो नहीं करना है। सपोज ऐसा कोई भी एग्जांपल हमें दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल स्टीरियोआइसोमर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहीं पर भी एंड्स आर नॉट सेम, एंड कहीं पर भी सेम नहीं होगा। सो सिंपल फॉर्मूला यू विल अप्लाई, एंड्स आर डिफरेंट एंड दैट इज 2:n। नाउ n इज किराल सेंटर। अब हमें सभी जगह घूम के देखना होगा किराल कार्बन कहाँ पर है। एक तो ये रहा, एक मिथाइल, ये इथाइल, एक इतना बड़ा ग्रुप और एक उस पर हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो दिस इज नॉट किराल कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप आर देयर, बट ये इथाइल है तो दिस इज किराल कार्बन। ये किराल कार्बन हुआ, एक बड़ा ग्रुप, इस साइड का बॉन्ड डिफरेंट है, इस साइड की अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर जो है उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो दोनों साइड अरेंजमेंट डिफरेंट हुई। अगर ऐसा होता तो ये किराल कार्बन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी इस साइड से आप जाओ या इस साइड से आप जाओ, सेम अरेंजमेंट ही मिलेगी, सेम अरेंजमेंट ही मिलेगी। साइक्लिक कंपाउंड वाला जो कार्बन है वो किराल कार्बन नहीं होगा, लेकिन इस साइड अरेंजमेंट डिफरेंट थी, इसलिए नाउ दिस इज किराल कार्बन। ये CH2 ये तो कोई किराल कार्बन हो ही नहीं सकते। देयर आर ओनली 2 किराल कार्बन्स, but we have to find chiral center n, and n is what? Number of double bond plus number of chiral carbon. अब डबल बॉन्ड ये 1 ये 2, डबल बॉन्ड कितने लेंगे हम? 1, किराल कार्बन कितने लेंगे? 2, टोटल किराल सेंटर कितना हुआ? 3, सही है ना? डबल बॉन्ड 1, किराल कार्बन 2, टोटल n इज इक्वल टू 3। इज देयर एनी डाउट? हमें वही डबल बॉन्ड काउंट करने हैं जिसके आसपास GI पॉसिबल हो। अब हमने ये जियोमेट्रिकल आइसोमर जब देखा था तब ये अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि अल्कीन, साइक्लिक अल्कीन अगर होता है, सो देयर मस्ट बी मिनिमम 8 मेंबर रिंग फॉर GI around double bond. Here only 5 member ring. So around this double bond, geometrical isomer is not possible. Cis and trans. Around this double bond, GI is not possible. So this double bond we don't have to count. Around this double bond, GI is possible, cis and trans. Right now it is trans.
यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, दिस इज ट्रांस. So around this double bond is possible, Gi. Around this it is not, so we don't have to count that pi bond. So only one pi bond. Total 3. 2 raised to n because ends are different. 2 raised to 3 again. Answer is 8. Now chiral carbon. There are 2 chiral carbon and ends are same. Q, because both the sides CH3 is there? No, because these two are also same group, exactly mirror image of each other. There is a plane of symmetry, so both the sides are same. That's why both ends are same. Just we don't have to see ends. Same example we can take of tartaric acid that already we know. Same example is there. 2 chiral carbon and there is a plane of symmetry. Ends are same. Both the sides. It means meso is possible. If meso is possible, obviously it is not this. Because 2 raised to n वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब meso नहीं होता. Meso 0 होगा. Ends are different. But यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. Ends are same. Now we have to see chiral carbon या chiral center. We have to count pi bond if it is, but there is no pi bond. Total chiral center, odd or even? Even. अगर even chiral center है, तो how many optically active stereoisomers are possible? 2 raised to n minus 1. अब यहाँ पे n कितना है? n is equal to 2. तो n minus 1 क्या हुआ? 1. 2 raised to 1 means 2. तो इसमें हमने देखा था ऑप्टिकली एक्टिव 2 ही होंगे. इसके हमने 4 फॉर्मूला ड्रॉ किया था, A, B, C and D. बट हमने बोला था बिकॉज दिस इज मेसो, C का जो मिरर इमेज D है वो हम कंसिडर नहीं करते. मेसो का मिरर इमेज कंसिडर नहीं किया जाता. तो टोटल 3 आइसोमर ही बचे. 3, उसमें से A एंड B ऑप्टिकली एक्टिव था, C मेसो था तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. टोटल 3 ही आइसोमर बनेंगे उसमें. तो ऑप्टिकली एक्टिव 2 बन गए. मेसो कितने होंगे ये भी देख लेते हैं. एक ही आएगा 2 raised to n by 2 minus 1. अब n कितना? 2. 2 by 2 is 1. 1 minus 1 0. 2 raised to 0 is 1. तो meso is 1. Total stereoisomers are 3. 2 optically active and 1 meso. All are stereoisomers. Total stereoisomers are 3. But how many optically active? 2. अब यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना. एंड्स आर सेम और नॉट? यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो एंड तो सेम है? नहीं, पहले भी मैंने बोला था एंड्स आर सेम एंड एंड्स आर डिफरेंट. मीन्स ये नहीं है कि हमको एंड ही देखना है. एग्जैक्ट इस मॉलिक्यूल में कितने किराल सेंटर है, कितने किराल कार्बन है? 3. एग्जैक्ट बीच में से काटोगे तो अब 2 से तो आप इन दोनों के बीच में से काट सकते हो. यहाँ 3 है तो इसको ही बीच में से काटना है. अगर there are 3 chiral center, then we have to place a plane exact here on central chiral carbon. Now look at both the sides. Is it similar? Is it similar? No. Cl, Br, 2 different groups are there. It means these two are not mirror image. They are not superimposable. It means ends are different. Ends are different. Same ends are not there. अगर ends are different
Then just formalize 2 raised to n. Formula is simple, 2 raised to n. Two raised to 3, 8. Now important thing, understand carefully. Is this central one is chiral carbon? Obviously it is chiral carbon. एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक ये बड़ा ग्रुप है, तो ऑल 4 बॉन्ड्स आर डिफरेंट. एक दिस साइड वाला ग्रुप है, दोनों ग्रुप सेम नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ऑब्वियसली दिस इज chiral कार्बन. सो सिंपली 2 raised to n एंड आंसर इज 8. ये लिख लेना. अब इसके बाद अगर हम ये ब्रोमीन को क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं, नाउ एंड्स आर सेम और डिफरेंट? सेम. 3 किराल कार्बन है तो बीच वाले को ही हमें बीच में से काटना है, एग्जैक्ट हमें सेंटर पकड़ना है. तो ये सेंट्रल कार्बन, अगेन आई एम टेलिंग, अगर 2 ही किराल कार्बन होते तो आप यहां से कट करोगे. अगर 4 किराल कार्बन होते तो आप यहां से कट करोगे. अगर 3 ही किराल कार्बन होते हैं, किराल कार्बन आई एम टॉकिंग, नॉट डबल बॉन्ड, किराल सेंटर नहीं, किराल कार्बन, तो उसको आप सेंट्रल वाले किराल कार्बन से कट करो और देखो दोनों साइड अरेंजमेंट सेम है तो सेम एंड्स, अरेंजमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट एंड्स. तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन ये तो बीच में से कट जाएगा, OH तो एग्जैक्टली बीच में से कट जाएगा, मीन्स 1/2 पोर्शन इस साइड, 1/2 पोर्शन इस साइड, तो दोनों साइड सेम ही आएगा. तो यहाँ पर कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बीच में कटने ही वाला है, उसके 2 हिस्से हो ही जाएंगे. इट मीन्स नाउ एंड्स आर सेम. अगर एंड्स आर सेम देन इट इज फाइनल, वी विल गेट मेसो. एंड सेम है तो मेसो मिलेगा. यहाँ पे ब्रोमीन था तो मेसो नहीं था, क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री वाज नॉट देयर. यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, मेसो हो ही नहीं सकता. मेसो है तो एंड्स आर सेम. अब इसमें हाउ मेनी किराल सेंटर? 1 2 3. नाउ इम्पोर्टेंट, इज इट किराल? Is this carbon chiral carbon? अच्छी तरह से देखो, 1 OH, H, ये दोनों डिफरेंट है. अब इस कार्बन के इस साइड जो ग्रुप है वैसा ही ग्रुप तो इस साइड है, तभी तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ बीच में. तो ये इस कार्बन के दोनों साइड वाले ग्रुप तो सेम हो गए, तो अब ये chiral कार्बन नहीं होगा. दिस कार्बन इज नॉट chiral कार्बन. बट in chiral center we will count that carbon. In chiral center we will count that carbon. अब chiral कार्बन है ही नहीं तो कैसे काउंट करेंगे? उसकी कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज होने पर भी आइसोमर तो हमें मिलेगा ही, आइसोमर तो हमें मिलेगा ही. तो इसको बोलते हैं स्यूडो किराल कार्बन. इससे बोलते हैं स्यूडो किराल कार्बन. रियल में वो किराल नहीं है, लेकिन काउंटिंग में हमें वो गिन लेना है, याद रखना. दिस इज कॉल्ड स्यूडो किराल कार्बन. तो n इज इक्वल टू 3. बट अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. इवन या ऑड. अब क्या हुआ? 1 2 3 ऑड. अगेन आई एम टेलिंग, इसको हमें काउंट करना है. सो ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई करो. 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n minus 1 by 2. This will be optically active. अब n कितना हुआ? 3. 2 raised to 3 minus 1 means 2 minus 2 raised to 3 minus 1 means 2. 2 by 2 is 1, means 2 raised to 1 is 2 only. 2 raised to 2 means 4 minus 2 is 2. Optically active 2. Meso is 2 raised to n minus 1 by 2. This is 2 raised to n minus 1 by 2 is 2. We'll get 2 optically active and 2 meso. Total stereoisomers 4. Total stereoisomers 2 raised to n minus 1, which will be 4. Obviously 2 optically active and 2 meso, तो total 4 ही होंगे. अब डायरेक्टली आप कर लो 2 raised to n minus 1, n is equal to 3. 2 raised to 3 minus 1 means 2. 2 raised to 2 means 4. तो total stereoisomers will be 4, out of that 2 optically active and 2 meso. अब आगे भी हमने बोला था कि मेसो जो होता है उसका मिरर इमेज हम काउंट नहीं करते,
वो एक ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 मेसो कैसे हुआ? तो हमने उसका मिरर इमेज काउंट नहीं किया है, 2 डिफरेंट मेसो कंपाउंड यू विल गेट। कैसे? लाइक दिस इज मेसो। आप यहाँ बीच में से काटो तो ऊपर नीचे सेम अरेंजमेंट होगी। अगर ये सेल इस साइड होगा तो वो मेसो नहीं होगा, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन दोनों सेल सेम साइड है तो दिस इज मेसो। अब इसका मिरर इमेज जो होगा वो हमने काउंट नहीं किया है इसमें, लेकिन ये सीएल एज इट इज रहने दो। ये सेंटर वाला जो कार्बन है उस पे H एंड OH की पोजीशन चेंज कर दो, तब भी तो ये तो मेसो ही होगा, क्योंकि इसको तो हमें बीच में से काटना ही है, ऊपर नीचे की अरेंजमेंट तो सेम ही होगी ना। तो ये 2 मेसो कंपाउंड मिलेंगे हमें। इसका जो मिरर इमेज होता है वो तो काउंट करना ही नहीं है, वैसे ही सेंट्रल कार्बन के ऊपर अरेंजमेंट चेंज कर दो, वो मेसो ही रहेगा, क्योंकि वो कार्बन तो हमें बीच में से काटना है। That's why we'll get 2 meso compound. तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन सामने आएंगे, इसे अच्छी तरह से सॉल्व करना। एंड फॉर दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला 2n 2n minus 1। कितने मेसो, कितने ऑप्टिकली एक्टिव एंड्स आर सेम। इफ एंड्स आर सेम देन इवन नंबर ऑड नंबर। किराल सेंटर, उसमें ध्यान रखना है पाई बॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज किराल सेंटर, ये याद रखना। अब some definitions we'll see. Homomers. Now homomer means same compound, कोई और नहीं है। हमने आगे भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि आप टेट्राहेड्रल शेप को लाइक ऐसे लिखो, ये ब्लैक वाला बॉन्ड ऊपर है, तो आपको जो भी दिखता है आप ड्रॉ करो। अब इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे करके ड्रॉ करूं तो आपको कुछ और अरेंजमेंट दिखेगा। इसमें तो वो ब्लैक वाला ऊपर था, अब ये नीचे चला गया, तो ये कोई और मॉलिक्यूल है? नहीं, ये वही है। इस मॉलिक्यूल को मैंने जस्ट घुमा दिया है तो उससे मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड होमोमर। होमोमर मीन्स इटसेल्फ, वो कोई और नहीं है, वो खुद ही है। लेकिन देखने से हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चेंज हो गया, तो इससे अच्छा होगा हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज होमोमर और नॉट। क्योंकि अगर एक किराल कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। क्या? इसका मिरर इमेज भी हो सकता है। इसमें एक किराल कार्बन है, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो, अगर ये लियो है तो ये डेक्स्ट्रो। इट मीन्स एक किराल कार्बन है तो उसमें 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे, एक वो खुद, एक उसका मिरर इमेज। अगर ये लियो है तो ये डेक्स्ट्रो, ये डेक्स्ट्रो है तो ये लियो होगा। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसकी अरेंजमेंट अगर आप डिफरेंट तरीके से देख लो तो वो खुद है या उसका एनेंशियोमर? दिस इज कॉल्ड एनेंशियोमर। इसका ये एनेंशियोमर है, मिरर इमेज विच इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल। तो हमें उसके लिए R and S देखना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 2 3 4। नाउ जस्ट लुक एट 1 2 3 1 2 and 3 anti-clockwise means it should be R, but 4 is not in vertical line, it is in horizontal line, so this is S. Sorry, anti-clockwise means it is S, but because 4 is not in vertical line, this will be R. यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 is in clockwise. Clockwise means it should be R, but 4 is not in vertical line, so this is S. तो अगर ये R है तो उसका एनेंशियोमर उससे ऑपोजिट ही होगा। क्यों ऑपोजिट होगा? क्योंकि
इसका जो मिरर इमेज आएगा उसमें ये एच एंड ओ एच ऑपोजिट हो जाएंगे ना, ये ऊपर वाला नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ओ एच एंड एच है वो मिरर इमेज में ऑपोजिट हो जाएंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी। तो अगर हमें मालूम है कि किसी दो ग्रुप की पोजीशन आप चेंज करो तो आर हो तो एस होगा, एस हो तो आर हो जाएगा। इट मीन्स whenever there is R उसका एनेंशियोमर S ही होगा, एनेंशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट ही होगा। लेकिन इसको आप कैसे भी घुमा दो, एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज टाइप का या सेम दिखने वाला मॉलिक्यूल आपको नहीं देंगे, कभी कभार कोई डिफरेंट अरेंजमेंट आपको दे देंगे। लाइक यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे COOH लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये वाला और ये वाला ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। यहाँ पे COOH ऊपर है, यहाँ पे साइड में है। तो मैंने पहले भी बोला टेट्राहेड्रल शेप है, इसको आप कैसे भी देख लो, कोई भी ऊपर हो कोई भी नीचे हो, अगर मॉलिक्यूल को आप घुमाते हो तो उससे कोई मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता। तो अब ये सेम वाला है या डिफरेंट है, इससे हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन से ही करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3। अब 4 नंबर वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वो है ऊपर हो या नीचे चलेगा, 4 नंबर वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, वो है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, 1, 2 एंड 3, 4 को भूल जाओ, 1, 2 एंड 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस इज एस। अब ये आर है एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन एस हुआ, सो दिस टू आर एनेंशियोमर्स, दिस टू आर एनेंशियोमर्स। बट अगर यहाँ पे कोई चेंज होता, लाइक यहाँ पे H एंड यहाँ पे CH3, तो ये क्या हो जाता, R। अब ये दोनों सेम दिख नहीं रहे, अरेंजमेंट तो डिफरेंट दिख रही है, तो अरेंजमेंट से हमें मालूम नहीं पड़ेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो R, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो R, तो ये सेम ही हुआ। हमें दिख रहा है कि दिस टू आर डिफरेंट, इट्स लुक लाइक डिफरेंट बट इट इज सेम, क्योंकि इसको हमने डिफरेंट एंगल से देखा था। अगेन इफ कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, दैट मॉलिक्यूल इज सेम itself and these two are called homomer. Homomer means itself. तो homomer का मीनिंग क्या हुआ, सेम कॉन्फ़िगरेशन, वो खुद ही होगा होमोमर। और एनेंशियोमर में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट ही होगी। एक किराल कार्बन वाला कंपाउंड कभी डायस्टेरियोमर नहीं देता। हमने आगे देखा था ना टार्टरिक एसिड में A, B, C and D, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, उसमें से C and D आर सेम मैस हो, तो उसमें एक को हमने निकाल दिया। लेकिन ऊपर नीचे 2 COOH की जगह एक CH3 कर दो, तो A, B, C, D ऑल 4 पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो मैसो पॉसिबल होगा, होगा ही हम नहीं कहते, लेकिन पॉसिबल होगा। बट डायस्टेरियोमर तो होंगे ही। ए के लिए बी एनेंशियोमर, देन ए के लिए सी डायस्टेरियोमर, ए के लिए डी डायस्टेरियोमर। ए का एनेंशियोमर एक ही होगा, बाकी सारे डायस्टेरियोमर होंगे। लेकिन एक ही किराल कार्बन होगा तो 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक ये खुद और एक उसका मिरर इमेज, तो वो एनेंशियोमर ही होंगे। एक किराल कार्बन में कभी डायस्टेरियोमर नहीं मिलता, लेकिन अगर 2 किराल कार्बन है तो डायस्टेरियोमर हमें मिलेगा। तो होमोमर इन शॉर्ट वी कैन राइट सेम कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है epimers. Now this one is important. Epimers means what? For example, this is glucose.
How many total chiral center, chiral carbon are there? 1, 2, 3 and 4. This is not because there is CH2 and यहाँ पे C double bond होगा तो वो भी chiral नहीं होगा. तो 4 chiral centers are there and ends are not same. दोनों साइड सिमिलरिटी नहीं है तो मेसो इसमें पॉसिबल नहीं होगा. टोटल 2n 2/4 तो टोटल स्टीरियोआइसोमर. लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं देखना, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. अब यहाँ पर 4 कार्बन ऐसे हैं, चिराल कार्बन है, उस पे H एंड OH डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमें दिए हुए हैं. अब किसी भी एक कार्बन पे अगर अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट चेंज की सेकंड कार्बन पे. बाकी सारे सेम ही है. OH 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 सेम था. OH 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 इस साइड ही है, लेकिन इस कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड था, इस पे हमने राइट हैंड साइड पे ले लिया. इट मीन्स बिटवीन दिस टू व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंस इज जस्ट configuration of only one chiral center is changed, other are same. तो किसी भी एक chiral center पे अगर configuration change होती है, these two are called epimers of each other. Only one chiral center पे, सभी पर नहीं. It means obviously these two are not mirror image. क्योंकि इसका अगर आप mirror image निकालोगे तो इसमें जहाँ पे OH इस साइड है, mirror image में opposite direction में चले जाएंगे. उसमें तो सभी में चेंज हो जाएगा, टोटली इन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज एनेंसिमर. तो व्हाट इज एपिमर? देयर इज अ चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओनली वन chiral center. Only one chiral center. This is called epimer. And that chiral carbon should be anyone. कहीं पर भी लाइक इस पे भी आप OH को चेंज कर दो, इसकी जगह इसमें ऑपोजिट कर दो तो भी वो एपिमर तो होंगे ही. So epimer means change of configuration of only one chiral carbon. अब एनिमल्स, बायोलॉजी वालों को तो मालूम ही होगा, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ रखा हुआ है. ग्लूकोज, दिस इज ग्लूकोज. डी ग्लूकोज क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला चिराल कार्बन है उसमें OH राइट हैंड साइड है, सो दिस इज कॉल्ड डी ग्लूकोज. डी ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों है. अब ये नंबर 1 कार्बन हुआ एल्डिहाइड वाला, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन आर देयर. In cyclic structure of D-glucose, what happens? तो ये जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एंड H, इसमें ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो एक वैलेंसी कार्बन की और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की ओपन होगी. ये जो लास्ट चिराल कार्बन है, चिराल कार्बन तो यही लास्ट है, दिस इज नॉट चिराल, उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे रख दो. अब इसकी एक वैलेंसी ओपन हुई, इन दोनों को कंबाइन कर दो. सो दिस इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं. ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5th कार्बन है. ये फर्स्ट एंड 5th ऑक्सीजन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. और ये जो 5th कार्बन है उसके बाद जो 6 है वो CH2OH. तो इसको अगर आप फर्स्ट कार्बन बोलो तो ये 5th वाला हुआ ना, क्योंकि ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन है, फर्स्ट और 5th के बीच में ऑक्सीजन है, तो ये फर्स्ट तो ये 5. तो 5 वाला जो कार्बन है उसके साथ CH2OH जुड़ा हुआ है, तो ये CH2OH.
अब ये ओपन चेन हो जाएगा वापस, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर वापस इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। अब वापस इसमें से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो अब ये फर्स्ट कार्बन पे OH इस साइड भी हो सकता है, H इस साइड भी हो सकता है। ये फर्स्ट कार्बन पे चेंजेस हो सकता है। तो अगर सपोज फर्स्ट कार्बन पे OH इस साइड आ गया एंड H उधर चला गया, तो ये फर्स्ट पे HOH की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। OH ऊपर जाएगा, H नीचे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड anomeric carbon, and these two are called anomers of each other. Now what is the meaning of anomers? In cyclic structure, on first carbon, which is anomeric carbon, the position of functional group will be different. यहाँ पे OH डाउन साइड है, सेकंड में OH अप साइड ले लो। ओनली वन कार्बन पे ही H एंड OH या जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसकी पोजीशन चेंज होती है, अदर ग्रुप में नहीं। इट मीन्स this is called epimer also, because epimer की डेफिनेशन क्या है? कोई भी कार्बन पे, कोई भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, दैट इज एपिमर। अब वो कोई भी कार्बन हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी हो सकता है, वो एपिमर तो है ही। लेकिन एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? ये फर्स्ट वाला ही है। जब ये ओपन चेन में से साइक्लिक होगा, साइक्लिक में से वापस ओपन चेन होगा, तो ये फर्स्ट कार्बन पे ही चेंजेस हो सकते हैं। तो एनोमेरिक कार्बन इज फर्स्ट कार्बन, जो C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड वाला जो कार्बन था ना, तो फर्स्ट कार्बन पे ही अगर H एंड OH की पोजीशन चेंज होगी तो ही वो एनोमर कहलाएंगे। अदर कार्बन पे HOH की पोजीशन डिफरेंट होगी तो वो एनोमर नहीं कहलाएंगे। तो एनोमर और एपिमर में डिफरेंट क्या है? कोई भी एक कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज होगी तो वो एपिमर तो है ही, लेकिन एनोमर के लिए वो फर्स्ट कार्बन पे ही चेंजेस होना चाहिए। इट मीन्स ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स। एनोमर में फर्स्ट कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज होगी तो एपिमर तो वो कहलाएगा ही, क्योंकि एपिमर के लिए तो कार्बन कौन सा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स, बट ऑल एपिमर्स आर नॉट एनोमर, क्योंकि एपिमर में तो तीसरे कार्बन पे HOH की पोजीशन चेंज हो जाए तो भी वो एपिमर है, लेकिन एनोमर नहीं है। एनोमर के लिए तो फर्स्ट कार्बन पे ही चेंजेस होना चाहिए। ओके, नाउ इसको मिटा देते हैं। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अब ये क्या है? आल्डोज शर्करा है अगर, तो ये सिक्स टाइप का जो अरेंजमेंट होगा कि दोनों OH ग्रुप सेम साइड होंगे, दिस इज कॉल्ड इरिथ्रोज। एंड अगर ये दोनों OH ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रियोज। तो ये दोनों हमें जस्ट याद रखने हैं, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हमें जस्ट ये मालूम होना चाहिए बस। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी गिवन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन
R है, मीन्स उसमें ओनली 1 chiral कार्बन है, देयर इज ओनली 1 chiral कार्बन, तो उसका होमोमर क्या होगा? R वाला उसका होमोमर होगा। होमोमर मीन्स इटसेल्फ। एनेंशियोमर क्या होगा? S, अगर वो खुद R है तो एनेंशियोमर उसका ऑपोजिट ही होगा। डायस्टेरियोमर्स क्या होगा? डैश नहीं होगा, क्योंकि 1 chiral कार्बन वाले का डायस्टेरियोमर होता नहीं है, हमने अभी बोला। अगर वो गिवन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S है तो होमोमर S, एनेंशियोमर ऑलवेज ऑपोजिट होता है, अगेन डायस्टेरियोमर्स नहीं होता है। लेकिन अगर गिवन कंपाउंड में 2 chiral कार्बन है, R उसका कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों chiral कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो R वाला अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर मिलता है तो वो होमोमर होगा। आप अरेंजमेंट कैसे भी चेंज कर लो, लेकिन दोनों कार्बन पे R रहता है तो वो खुद ही होगा, वो अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है। उसका एनेंशियोमर क्या होगा? टोटली ऑपोजिट, SS, दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होगा तो ही वो एनेंशियोमर होगा। लेकिन एक कार्बन का R है, दूसरे का S है, सो दिस इज नॉट होमोमर, ये खुद नहीं है क्योंकि वो खुद तो R है। एनेंशियोमर भी नहीं है क्योंकि एनेंशियोमर में टोटली ऑपोजिट होता है SS, तो ये क्या हुआ? डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स में ऐसा भी होता है, SR, ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, दोनों उसके डायस्टेरियोमर्स होंगे। अब हमने पहले भी देखा था 2 chiral सेंटर होते हैं तो उसमें टोटल 4 स्टीरियोआइसोमर्स हमें मिलते हैं, A, B, C एंड D। अब सपोज ये A है तो A का एनेंशियोमर B एक ही मिलेगा, लेकिन A के लिए C, A के लिए D, 2 डायस्टेरियोमर्स मिलेंगे ना। ये A के लिए C, R, S और S, R, ये दोनों डायस्टेरियोमर्स होंगे। अगर ये S, S कॉन्फ़िगरेशन है तो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर आपको S मिलता है तो वो होमोमर इटसेल्फ। R मिलता है तो इसका टोटली ऑपोजिट हुआ, ये एनेंशियोमर। अगेन यहाँ पर RS या SR, ये दोनों उसके डायस्टेरियोमर्स। अगर गिवन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन एक कार्बन का R एंड दूसरे का S होता है तो सेम RS, होमोमर तो सेम ही होगा। एनेंशियोमर इसका ऑपोजिट होना चाहिए, अगर ये RS है तो ये SR होगा। ये क्या होगा? SR, दिस इज एनेंशियोमर। तो डायस्टेरियोमर्स कौन से होंगे? RR या SS? RR या SS। एंड सेम अगर गिवन कंपाउंड इज SR तो SR इज होमोमर, RS is its enantiomer, again RR and SS, these two are diastereomers. So उसकी कॉन्फ़िगरेशन से हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज एनेंशियोमर, होमोमर या डायस्टेरियोमर्स। अगेन आई एम टेलिंग, कभी भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर से डायरेक्टली आइडेंटिफाई मत कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप कैसे भी घुमा के ड्रॉ कर लो आपको सेम नहीं दिखेगा। कॉन्फ़िगरेशन से ही वी विल डिसाइड वेदर इट इज होमोमर या वेदर इट इज एनेंशियोमर या डायस्टेरियोमर। ओके बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छी तरह से दिमाग में रखना, ये बहुत काम लगेगा। कई सारे क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से ही उसको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज दिस। तो आज इतना रखते हैं, प्रैक्टिस जारी रखो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके बाय।